into the fifth session. All right, chapter number 6, life processes. All right, in the previous session we discussed about what is respiration, what is the importance of respiration, and how respiration occurs in plants. Okay. Yes, that is very important question I said in the examination, for your examination. Types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Chille difference bhi pucha hai. You understand? And remember those questions. I told you to memorize. Okay, please. क्योंकि वहां बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे, because chemical formula सबके लिखी नहीं है. Glucose actually it is C6H12O6, लेकिन वहां glucose लिखा है. Is that clear? Okay. Okay. This was our target even in the previous session only. Previous session का ही target था, but we couldn't finish. बराबर ना? To your joy, the bell had rung. है ना? और वो तो रिसेस का टाइम था, लंबी रिसेस का, है ना? ओके, चलिए. So let's see today respiration in animals. All right, children. What is the main organ for respiration in human beings? If you have to say only one word. Lungs. Or one organ. Yes, lungs. Do all living organisms, I'm talking about animals only now, have lungs for respiration? No. Then what are the organs help the animals in respiration? Gills. Aquatic creatures, those creatures which dwell in water, they obtain oxygen that is dissolved in water. And for that, the special structure given to them are gills. Alright? Anything else? There are so many types of insects. There are so many types of insects. Do you understand? Alright? They have tracheae. They have tracheae. Their respiratory organ is tracheae. I'll write the spelling later. Okay. Well, हमारे घर में पाइपलाइन होती है पानी की यहाँ वहाँ. ओके, वैसे ही पाइपलाइन होती है इंसेक्ट्स में. दैट इज ट्रैकी. ओके, चलिए. फिर if you talk about earthworm, they respire with their skin. They respire with the help of skin. और वही diffusion से. You understand? And what about unicellular organisms? They have single cell. How do they respire? What organ they have? अरे कोई organ ही नहीं है. अंदर तो सब cytoplasm, then cell organelles, nucleus, वो सब है. वो तो process बोल रहा है आप. But what part of the cell helps to respire? अभी earthworm का क्या है? That is its outer covering. तो उसी तरह सेल का आउटर कवरिंग, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं. Cell membrane. So cell membrane helps the unicellular organism in input-output diffusion say. Okay, so that's what I discuss right now. I'll just write. Well, unicellular organism. Unicellular organism. We'll say one example, amoeba. It's unicellular, right? It respires with the help of cell membrane. Cell membrane. If you talk about earthworm, it will respire with the help of skin. If you talk about aquatic creatures, you understand? They have gills. Alright? And if you talk about higher animals, in which man, dog, birds are also included, they have lungs. Right? Yes. So how do earthworm respire? Skin. With the help of skin. Actually it is the moist one. Alright? Moist skin. Then even frogs sometime, do you know frog
फ्रॉग के बारे में पता है? पहली बारिश हुई, अच्छा सा पानी भर गया, ड्राउन 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 सुनाई देता है। कहां से आए सब? They are buried in the soil. जब monsoon is gone, they stay inside, totally in inactive state. Totally in inactive state. पूरे मानसून में खाना खा खा के फैटी बन जाते हैं, पूरा फैट शरीर में स्टोर करते हैं, और जब तक दूसरा मानसून आता है तब तक वहीं है। इनएक्टिव स्टेट, जैसे हम सो जाते हैं, सिर्फ हमारा हार्ट चलता है और कुछ नहीं, वैसा ही इट्स कॉल्ड एस्टिमेशन। दैट पीरियड, जो पूरा पीरियड इनएक्टिव स्टेट में रहता है, इट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एंड वन मोर वर्ड, हाइबरनेशन। यदि विंटर की बात हो तो इट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और समर सीजन की बात हो तो इट्स कॉल्ड एस्टिमेशन। ऑलराइट, अब मुझे प्रॉब्लम रहते हैं, वो याद है लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स। मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूं अभी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। राइट, ओके, चलिए थोड़ी बादाम खाएंगे और क्या देखते। फाइन, नाउ सी, yes, estivation and hibernation. These are two terms used for organisms which live in inactive state. उसका शरीर चलता है, हार्ट चलता है, बाकी की सब प्रोसेस बंद, और हार्ट चलाने के लिए वो एनर्जी चाहिए। वो जब सीजन फेवरेबल कंडीशंस हो तब पूरा ले लेते हैं। मानसून सीजन का फ्रॉग देखो कितना बढ़िया तगड़ा वाला। अब कभी कोई ड्राई वाला ब्राउन कलर का फ्रॉग देख लो, बेचारे की चमड़ी देखो, इट इज ऑल क्रिपल्ड। बुढ़े लोग की जो चमड़ी होती है ना, ऐसे, मेरी नहीं है, मैं अभी जवान हूं। नाउ सी, so that is about frog. So here frog has lungs. Frog respires with the help of lungs, but it can respire also with the help of moist skin. क्यों? क्योंकि कभी कभी फ्रॉग पानी में भी रहता है। ऑलराइट, उसको क्या कहते हैं जो पानी में भी रह सकते हो? ऐसा सही है? अच्छा, सो फ्रॉग इज एम्फीबियन, राइट? चलिए, फिर एक्वाटिक क्रीचर्स के पास क्या है? स्पेशल ऑर्गन्स, गिल्स है। ये चिल्ड्रन, ये फ्रॉग की बात की ना हमने, tadpoles, the young ones of frogs, they are tadpoles. Tadpoles, they live in water. उनकी लाइफ पानी में रहती है, तो जब तक वो पानी में होता है ना, तब तक उसके पास गिल्स होते हैं, फ्रॉग का बच्चा। And then as it grows up, becomes young enough, adult, lungs. So दोनों गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं। Gills become inactive once the frog becomes adult and your lungs starts functioning. Alright? Chaliye. So aquatic creatures have gills, and as I said, higher creatures have lungs. अब मैं lungs के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, यही बात मैं कह रहा था कि आपका स्पेशल बायोलॉजी टीचर होते तो आपको लंग्स के बारे में, कि भाई इन ह्यूमन बींग्स इट हैज 4 चैम्बर्स, कुछ बर्ड्स में 3 चैम्बर्स, ऑलराइट? एम्फीबियन में कितने? 2 ही चैम्बर है। 2 चैम्बर, एक में डिवाइडेड है, एक में अनडिवाइडेड है। वो 3 चैम्बर, वो 2 डिवाइडेड है, तीसरा डिवाइडेड नहीं है। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आई कैन गिव यू दैट नॉलेज, बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर 10th स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई। यू अंडरस्टैंड? उसकी जरूरत ही नहीं है। Of course, you are going to learn in 11th standard. Okay? The only thing is I'll have to read and okay, वो थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा मुझे। हाँ भाई, और एक प्रॉब्लम भी है ना, अभी तो उम्र हो रही है ना, याद नहीं रहता। Okay. याद रहता है, वो चीज याद रहती है, डोंट वरी। Okay, that's all. This is how respiration, मतलब different means of respiration or different means of organs used by different organisms for respiration. Now straight away we go to how respiration takes place in human beings. That example, animals का तो देख लिया आपने,
सबका डिटेल में देखोगे आप, शायद कभी कभी आप मेडिकल में होगे तभी भी देखोगे कुछ तो डिटेल। ऑल राइट, नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इन ह्यूमन बीइंग, तो पहले हम सोचते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन्स बोलेंगे ना तो 3, क्या? लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। बट ऑल ऑर्गन्स, इफ आई स्टार्ट नोस्ट्रिल, करेक्ट? Nostril, then there is a passage through which the air moves, that is nasal passage, right? जहां nasal passage end होता है वहां दूसरा ऑर्गन उसको कनेक्ट होता है, that is called pharynx. All right? pharynx जहां end होता है वहां नेक्स्ट ऑर्गन कनेक्ट होता है, that is called trachea, or it's also called windpipe. All right? Trachea आगे चल के divides into 2 branches, which is called bronchi. Plural word is bronchi, singular word is bronchus. All right? And these 2 divisions of windpipe connect to lungs. Connect to lungs. So these are the these are the organs, not main, the organs of respiratory system in human beings. All right. Now कैसे शुरू होता है? All right. I'll just try. ये है अपना nasal passage. ये nostril, ये बाहर जो आपको दिखता है वो क्या है? नोस्ट्रिल। ऑलराइट, और जो ग्रीन कलर का पैसेज जो आगे बढ़ रहा है दैट इज नजल पैसेज। नोस्ट्रिल ड्रॉ करो ना, ज्यादा क्यों ड्रॉ करो, मुझ पे हंसेंगे ना। ऑलराइट, ये है नजल पैसेज, यहां तक नजल पैसेज। There the nasal passage ends. You understand? And there what starts? Pharynx. Okay. Pharynx. All right. Pharynx जहां end हुआ वहां से शुरू हुआ विंड पाइप जो नेक से जाता है, हमारी गर्दन से जाता है, that is trachea, also called विंड पाइप। ऑलराइट, ये जो कनेक्शन है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच वो हमारे यहां आइसोफेगस के आसपास, जहां से हमारा खाना नीचे our eyes, nose, ears, mouth, सब का कनेक्शन इधर समवेयर है। आर यू गेटिंग मी? हाँ, तो यहां एक ओपनिंग है, स्लिट, एक स्लिट है, which is called glottis. It is called glottis. All right. This glottis is covered by a cartilaginous. Cartilage पता है ना? It's bone but soft one. It is flexible. Okay. So it is covered by a flap. Yes. Cartilaginous flap, which is called epiglottis. ग्लॉटिस को कवर करने के लिए क्या है? एपिग्लॉटिस. डू यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, व्हेन यू आर ईटिंग द, ओके, ये एयर जो नोस्ट्रिल से, नजल पैसेज से आगे बढ़ते हुए फेरिंक्स से विंड पाइप में जाना है, थ्रू दिस स्लिट, थ्रू दिस ओपनिंग विच इज कॉल्ड ग्लॉटिस. बट दिस ग्लॉटिस हैज अ कवर, उसको ढक्कन है
जो कार्टिलेज से बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब खाना खाते हैं, मैंने बोला सब कनेक्शन यहाँ है, आईज, नोज, ईयर्स और माउथ का। ऑलराइट, तो ये जो स्लीट है ना, उसमें हमारा खाना चला ना जाए, वरना वो ट्रैकिया से लंग तक पहुंच सकता है ना। खाते समय कभी कभी यहां जबरदस्त बर्निंग सेंसेशन के साथ हम खांसते हैं, और तभी कोई बोलता है किसी ने याद किया, कोई याद नहीं करता है। हाँ, वो ग्लॉटिस में एपिग्लॉटिस ने अपना काम समय से नहीं किया, जो खा बेचारा, उसका क्या वाक, उसका क्या गलती। हमको हेस्ट है, उतावड़ तो આપણને જ ખાવાની, ઢકેલવાની, ઢકેલો, जल्दी जल्दी खाओ। So that epiglottis doesn't have sufficient time to close the glottis. So food sometimes, but वो टाइम भी थोड़ा सा ऊपर कवर में लग जाता है, कभी कभी चला भी जाएगा, चोखा नो एक दाणो आखो लंगूटी पहुंची हो जाए, कहीं नक्की नहीं। ऑलराइट, आई नो अबाउट वन इंसिडेंट। मेरे इन लॉज के फैमिली डॉक्टर है, उसका लड़का, वेल कोइंसिडेंटली दैट बॉय शेयर्स बर्थडे विथ माय डॉटर, 13th November, दोनों की सेम डे है बर्थडे, इज एल्डर टू माय डॉटर। When he was 9 years old, that incident, on that particular day, I was in my in-laws place, and we got the message. उसका he was eating grams चना, तो एक चनो सीधो लंग સુધી पहुंची गयो। From where? Through the slit. बराबर ने, है ना? वो વ્યારાની વાત છે। My in-laws place is વ્યારા। કદાચ નવસારીના ફેમસ મુંદરાજના દાણા ચણા ગયેલા હોય લાગે, એટલે જલ્દી જલ્દી ખાઓ, ઓછી હોય તે, આઈ એમ જસ્ટ જોકિંગ, બટ ધેટ 1 gram reached the lung. It's painful, लेकिन there are ways, I don't know how it was removed, but that was removed. Okay, वो निकाल दे, ग्लॉटिस तो शायद याद रह जाएगा, है ना, एंड द एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहां आगे बढ़कर trachea divides into 2 parts. This is called bronchus. एक को कहेंगे bronchus और दोनों को कहेंगे bronchi. The right one and the right में लिखते हैं वो है left bronchus, और ये जो left side, ये है ना उसका left और right. Okay, so ये right bronchus. Now that is connected to lungs. Alright? But this bronchus gets divided into small. मैं ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूं, branches. आगे चल के वो डिवाइड होती ही रहती है, and the smallest branch के एंड पे, लेट्स से दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रांच, ये वाला एक स्मॉलेस्ट ब्रांच मिला, उसके एंड पे एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है, विच इज कॉल्ड अल्वियोली। इट्स मैंने बड़ा दिखा है, आपको देख सकते हैं इसलिए, हाँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अल्वियोली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर। जो भी ऑक्सीजन आया अल्वियोली तक पहुंचता है, सब ऑक्सीजन, और वहां से वो ब्लड को ऑक्सीजन देता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, द गैसियस वेस्ट लेता है, एंड देन अगेन is pushed out. You know, during inhalation the oxygen will come, and during exhalation this carbon dioxide and water vapor, that is the gaseous waste, will be discarded through the nostril. You know that. So this is how respiration takes place in human being. Right. वो यहाँ क्या होता है, when we see the circulatory system, तब मैं समझाऊंगा कैसे एक्सचेंज, वो ब्लड कहां से आता है और कहां जाता है। Actually impure blood comes here
एल्वियोली उसको ऑक्सीजन देता है और उससे क्या ले लेता है, सो दैट इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो कहां जाता है, विल डिस्कस दैट। Here right now we are talking about respiration. Exchange of gases हो गया, so respiration is over. Is that clear? So what is the mechanism of breathing now? Mechanism ये तो पूरा मैंने समझा दिया कि कैसे वो जाता है, लेकिन how the air is pushed in, कैसे एक जगह से आगे उसका मूवमेंट होता है। All right? So now we'll see breathing mechanism. Breathing mechanism in human beings. All right? Nostril है, nasal passage है, then comes pharynx. Okay, एक चीज मैं भूल गया, यहां pharynx के नजदीक एक बॉक्स है, which is called voice box, जिसको कहते हैं larynx. You understand? रेस्पिरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं, ओके, लेकिन वॉइस बॉक्स की बात कर रहा हूं। चलिए, सो व्हाट इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म? हाँ, वही बता रहा था। नोस्ट्रिल, नजल पैसेज, फेरिंग्स, फिर क्या आया, ट्रैकिया, वो तो ओपनिंग है, वो तो स्लीट है। ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। ऑलराइट, ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो हमारी गर्दन से पास होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, ये जो है ना वो ऐसे सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स से कवर्ड है। क्या क्या ट्रैकिया, विंड पाइप। क्यों? जब विंड जाएगा तो ठीक है, दैट विंड पाइप विल ओपन अप, बट व्हेन देयर इज नो विंड, देयर इज नो एयर, इट विल कोलैप्स। कोलैप्स तो हो गया, फिर हवा आई तो उसको ओपन होना है, तो नहीं ओपन हुआ तो गए काम से, है ना। इसलिए भगवान ने क्या किया, वहां सी शेप की रिंग्स लगा दी। आपको पता है, आपका जो बेसिन होता है, नीचे से वो पाइप होता है, किचन के अंदर भी पाइप होता है, वो ऐसे ऐसे रिंग वाला पाइप होता है, ताकि वो दब नहीं जाए, सो दैट इट डजंट कोलैप्स। ऐसा ही, सो दिस सी शेप रिंग डजंट अलाउ द विंड पाइप टू कोलैप्स ही नहीं होने देता है। उसमें से हवा जा रही है ना जा रही, लेकिन किसी की गर्दन जो दबा दी, आप देख सकते हैं आवाज बदल गई, क्योंकि ये अरे कार्टिलेज से बना है, वो सॉफ्ट बोन है, वो तो दब जाएगा। अब दबा दोगे तो दब जाएगा, और ये बंद हो गया तो उसकी लाइफ भी बंद हो गई। सो दैट्स व्हाई गर्दन किसी की दबानी नहीं चाहिए। हाँ, मारना हो तो, लेकिन मारना ही नहीं किसी को। ऑलराइट, नाउ सी, अंडरस्टूड दिस? अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक इन द एयर? एक्चुअली डायफ्राम, वो एक मस्क्यूलर पार्ट, पीरियड इज ओवर अबाउट डायफ्राम। ऑलराइट, ये एक मस्क्यूलर पार्ट है which lies below the lungs, which lies below the lungs, and this is the main muscular part which is responsible for breathing mechanism और respiration की जो mechanism है उसके लिए वो main है, कैप्टन है। You understand? When it contracts, मैंने बताया लंग्स के नीचे, हार्ट के आसपास लंग्स के नीचे है, और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट हैपेंस? योर थोरैकिक कैविटी मींस चेस्ट कैविटी। भाई ये रिबकेज है ना, ये आपकी हड्डी पसली है ना, अंदर से पूरा ओपन है, वो फूलती है। कब?
When diaphragm contracts. When diaphragm, the thoracic cavity increases in size. Diaphragm के साथ वो thoracic cavity या chest cavity या rib cage की cavity को open करने में जो rib cage के ऊपर muscles है वो भी मदद करते हैं. They also have muscles also contract. Diaphragm contract होता है, उसी के साथ the muscles which are found on rib cage they also समझो वो सब उसके बाहर से उसके ऊपर जमा हुए हैं, लगे हुए हैं, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको ऊपर खींचते हैं, आउटवर्ड खींचते हैं. आर यू गेटिंग मी? सो अंदर की कैविटी बड़ी होती है. ऑलराइट, सो अंदर कैविटी बड़ी हो गई, स्पेस हो गया, सो अंदर का प्रेशर कम हो गया. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से air will enter in, it will move in, it will move in. You understand? And alternately, वो होने के बाद तुरंत ही ये एक्सपांड होगा, वो रिब केज के मसल्स भी एक्सपांड हो गए. सो अगेन वो मसल्स रिलैक्स कर दिया. सो जो कैविटी को या रिब केज को खींच के बाहर आउटवर्ड किया था वो वापस अंदर चला जाएगा. एंड दिस टाइम द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, इट इज डिस्कार्डेड आउट. So this is the so main part is diaphragm. Are you getting me? All right. और ये alternate expansion and contraction of diaphragm keeps on taking place, so that inhalation and exhalation of air takes place. So this is how breathing mechanism takes place in human. So that's all for this session. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.